Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 1st October 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that spent fuel storage cleared for Kundankulam Unit 3 and 4. Now, talking of the background, it is basically speaking of a nuclear power plant by the name of Kundakulam, and there are four units of this power plant: one, two, three, four. Out of the four units, third and fourth units, fuel storage has been cleared, or we can say ki there's a space maintained between the units of third and fourth. Now, from this article, we'll study about the proper place where Kundakalam locates, and there are two bodies whose names are located here. That is Atomic Energy Regulatory Board. So we'll study about that board also. When was it formed? So it can be important for you from prelims point of view, that if questions can be there. So the Atomic Energy Regulatory Board has granted the consent for establishments of away from reactor spent fuel storage. It's speaking of the fuel storage. Fuel storage for Kundakulam Nuclear Power Plant Project Unit 3 and 4. The consent will be valid for 5 years from August 23rd. August 23rd, 2021, the date from insurance. So from 23rd, they will make a proper storage, or we can say fuel storage, little far from the reactors, and its project has started. Its validity is for 5 years from the day of its insurance, that is 23rd August. Next thing, the Nuclear Power Corporation of India Limited, which is NPCIL. Nuclear Power Corporation of India Limited has proposed away from reactor storage, मतलब जो वर्किंग करने वाले हैं, जो इसका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, दैट इज दिस बॉडी फॉर द यूनिट 3 and 4 ऑन द एग्जिस्टिंग साइट्स. यूनिट 3 and 4 पे क्या क्या मैकेनिज्म वहाँ पे अभी भी है, दैट इज दे हैव टू 1000 megawatt units, then 4 1000 megawatt units, 3 and 6 are various stages of construction. और भी constructions है, but proper 1000 megawatt of storage of mechanism, and then 4 1000 megawatt for energy mechanism या power plant वहाँ पे developed है. The AERB, that is the Atomic Energy Regulatory Board, said that its consent letter that the primary responsibility of the safety of the facility rested with the NPCI, as they are making all the mechanisms, or we can say all the main infrastructure built by them. It is the responsibility of the consentees to comply with the safety requirements as specified in the regulation. AERB said criteria for evaluation of the site for locating a particular nuclear facility was ensured by the site plant interaction. ठीक है. So according to Sundaranjan Nanbargal said that instead of finding a location for deep geological responsibility of safety, as directed by Supreme Court, NPCIL was seeking the permission of construction and away from reactor disposable location. अवे फ्रॉम रिएक्टर का मतलब क्या है, जो एक्चुअल हमारा रिएक्टिव बॉडी है, जो न्यूक्लियर प्लांट है, उससे थोड़ी दूर में दे विल मेक अ प्रॉपर फ्यूल स्टोरेज बॉडी और फ्यूल स्टोरेज बिल्डिंग. ठीक है. सो उसका कंसेंट मिल चुका है, जिसको बनाएंगे NPCIL. और कुछ दूरी पर कौन से यूनिट पे, तो यूनिट 3 and 4 के पास, मतलब जहाँ पे पावर प्लांट यूनिट 3 and 4 है, उससे थोड़ी दूर में उसकी स्टोरेज फ्यूलिंग की बिल्डिंग्स बनाई जाएगी. ठीक है. कौन बना रहा है, तो NPCIL बना रहा है, ये आपको याद रहना चाहिए. अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं अबाउट दी एटॉमिक रेगुलेटरी बोर्ड. एटॉमिक हाँ वही. सो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में अगर हम पढ़ें, AERBE, सबसे पहले ये एस्टैब्लिश हुआ था 1983 में, नवंबर 1983 में इट वाज एस्टैब्लिश.
फॉर दी टू कैरी आउट बेसिकली दी रेगुलेटरी और सेफ्टी फंक्शंस, जहाँ पर भी ये न्यूक्लियर प्लांट्स बनते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी ये ऐसे प्लांट्स और कंस्ट्रक्शंस होते हैं कंट्री साइड में, वहाँ की सेफ्टी, वहाँ का फंक्शन, ओवरऑल सारा जो वर्किंग है वो हमारा AERB देखता है. So it carries out a certain regulatory and safety functions in the field of nuclear and radiation safety on a countrywide basis. On a countrywide basis. ठीक है. और ये जो आया था तो हमारा जो एक्ट है, एक्चुअल एक्ट, दैट इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962. तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 में सेक्शन 27 में उसको लाया गया था. ठीक है. सो सेक्शन 19 हमारा जो एक्ट है 1962, उसके सेक्शन 27 में इसको इंक्लूड किया था कि देयर विल बी अ बॉडी जो ओवरऑल पूरा सर्विलेंसेस उसका चेक करेगा, फंक्शंस और सेफ्टी सभी, रेगुलेटरी बॉडी जो है उसको बनाया गया था. तो सेकंड थिंग आपको क्या याद रखना है अबाउट 1983 के बाद, कि हमारा जो एक्ट है एटॉमिक एनर्जी 1962, उसके अंदर सेक्शन 27 में इसको इंक्लूड किया है. ठीक है. Next thing is the regulatory authority of AERB is derived from the rules and regulations. तो हमारा जो ये एक्ट है इसके rules and regulations as well as जो हमारा Environment Protection Act 1986 है, ये दोनों के rules and regulation के हिसाब से ये बॉडी का फंक्शनिंग होता है. ठीक है. कौन सी दो एक्ट, ये हमारा एटॉमिक बॉम्ब वाला और एक है हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986. इसका प्रॉपर हेडक्वार्टर अगर हम बोले तो हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट मुंबई. ठीक है. एंड दिस इट्स मिशन इज टू इंश्योर द यूज ऑफ आयनाइजिंग द रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड डज नॉट कॉजेज एनी रिस्क टू द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट द पीपल अराउंड दैट प्लेस. ठीक है. करेंटली अगर हम बात करें इसकी फुल टाइम चेयरपर्सन, मतलब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सो देयर इज अ चेयरपर्सन इस बॉडी के हेड, जो कि उनके एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे और 3 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, उसके साथ एक सेक्रेटरी होंगे. ये उसका स्ट्रक्चर है AERB का. ठीक है. तो ये चीज़ क्लियर हो गया. अब कुंडलम क्यों इम्पॉर्टेंट है, कुछ टाइम पहले ही कुंडलम के रिलेटेड एक न्यूज़ आया था, बिकॉज जो कुंडलम पावर प्लांट है उधर ये चीज़ देखा गया था कि साइबर अटैक हुआ था. ठीक है. सो साइबर अटैक होने की वजह से भी कुंडलम न्यूज़ में था. सो इंडिया हैज़ टेकन ओवर फुल ऑपरेशन, और ये जो कुंडलम प्रोजेक्ट है ये प्रॉपर पार्टनरशिप में है रशिया के साथ. ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए अगर क्वेश्चन आए कि इस कंट्री के साथ पार्टनरशिप में से बनाया गया है. सो इंडिया हैज़ टेकन ओवर द फुल ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ यूनिट 1 बाय द एग्रीमेंट. और प्रॉपर इसकी बात करें, ये एक्चुअली कब हुआ था, जब हमारे देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और हमारे सोवियत प्राइम मिनिस्टर मिखाइल गोर्बाचेव, ये दोनों ने एक ट्रीटी साइन की थी 1988 में. ठीक है. दे साइंड अ ट्रीटी टुगेदर बिगिनिंग द प्रॉमिस ऑफ न्यूक्लियर पावर एनर्जी, जिसमें दोनों ने साथ में मिलकर ये पावर रिएक्टर्स बनाए थे. इसके 2 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनवाए थे. ठीक है. बट ये चीज़ देखा गया था, सून द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इटसेल्फ, एग्रीमेंट वाज साइन बीन स्लबलिंग और एक ब्लॉक बन गया था. देन 2000 में, इन द ईयर 2000, द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर दिस स्टार्टेड बिगेन अगेन इन तमिलनाडु. प्रॉपर अगर देखेंगे तो हमारा ये जो तमिलनाडु है वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 65 किलोमीटर्स कुछ साउथ में हमारा कुंडलम पावर प्रोजेक्ट है. ठीक है. सो 1988 में सोवियत यूनियन के साथ स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट. फिर सोवियत यूनियन में हमने देखा था ब्रेकडाउन था, ये प्रोजेक्ट रुक गया. देन अगेन ये 2000 में इसका फंक्शनिंग वापस स्टार्ट हुआ. देन 2004 में प्रॉपर पोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द रॉ मटेरियल्स. और उसके बाद अगेन आफ्टर 4 years 2008 में एक ऐसे 4 रिएक्टर्स प्रॉपरली इस्टेब्लिश बनाए गए थे. द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर विच वॉज शेड्यूल टू बिगिन, जो प्रॉपर बिगिनिंग स्टार्ट वर्किंग जो था वो 2009 में सबसे पहला इसका चारों में से पहला रिएक्टर का यूज़ करना स्टार्ट किया था. और करेंटली जैसे मैंने बताया 1000 मेगावाट के ऐसे अलग अलग पावर प्लांट्स जो हैं इनके यहाँ पे बने हुए हैं. So the first unit of nuclear power plant reached the full capacity generation of 1000 megawatt in 2014.
of which Tamil Nadu shares the power of 465 megawatt. The share nuclear power in India of the country energy mix remains low. Kundalam is the highest capacity generating nuclear power in India. It is the highest capacity generating power in India. Beyond the power generation, the project is also a symbol of cordial relation between India and Russia. जैसे मैंने बोला कि इट इज़ अ बायलैटरल एग्रीमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इसकी वर्किंग स्टार्ट की है जो रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया। तो कुंडलम प्रोजेक्ट वैसे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि पिछले साल इट वाज इन न्यूज़ फॉर साइबर अटैक, ये साल ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, तो शायद मे बी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ सके। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट मोर टाइम टू रिव्यू FCRA रजिस्ट्रेशन। अब FCRA रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले एक छोटी चीज़ आप लोग को याद रहनी चाहिए, ये FCRA है क्या। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, इंडिया में बहुत सारे NGOs हैं, राइट। इतने सारे NGOs हैं, सबको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एड चाहिए होगा फॉर फंक्शनिंग, फॉर द सोसाइटी, टू वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सो कुछ जो NGO होते हैं वो प्रॉपर FCRA के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड इनको जो फंडिंग होती है, जो फाइनेंशियल हेल्प होती है, वो बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इनको आता है। फॉरेन कंपनीज इनको फंड्स देते हैं ताकि दे कैन वर्क फॉर इट। ठीक है, पिछले साल ये न्यूज़ में बहुत था, ठीक है, क्योंकि वो इसके लिए था क्योंकि इसमें अमेंडमेंट लाया था 2020 में, 20 या 19 में। इस जो हमारा ये एक्ट है इसमें एक अमेंडमेंट लाया था, इसके लिए वो न्यूज़ में था। इस बार जो न्यूज़ में है वो इसके लिए क्योंकि जितने भी NGOs हैं जो लोग FCRA के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनको ये बोला गया कि 31 दिसंबर से पहले अपना जो रजिस्टर्ड कार्ड है, जिसके अंदर ये दिखता है कि आप FCRA के अंडर रजिस्टर्ड हो, उसको रीन्यू करवा लो। ठीक है, पहले आर्टिकल पढ़ते हैं, देन FCRA के बारे में देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझेगा। Ministry of Home Affairs has extended the deadline till December 31 for NGOs to apply for the renewal of their Foreign Contribution Act registration certificate। जैसे मैंने बताया, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉरेन से उनको फंडिंग्स आते हैं। The registration is mandatory for association and NGOs to receive foreign funds। अगर ये लोग रजिस्टर्ड होंगे then only they can get the fundings from foreign companies। The ministers had earlier given a relief up to September 30 to NGOs whose registration was expiring between 2020 से 2021 तक। लेटेस्ट ऑर्डर स्टेट की डेडलाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, 29 सितंबर से उसको 31 दिसंबर तक कर दिया है कि 31 दिसंबर से पहले तक आप अपना वो जो कार्ड है रजिस्टर्ड कार्ड, उसका रिन्यूअल करवा सकते हो अगर इट इज़ बिन एक्सपायरिंग। ठीक है, सो द सर्टिफिकेट्स ऑफ अराउंड 80% ऑफ द NGOs आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपायर इन October 31 एंड एज पर द नॉर्म्स दे हैव टू अप्लाई एटलीस्ट 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन। Registration NGOs can receive foreign contributions on 5 purposes: social, educational, religious, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। ऑब्वियसली NGO कभी भी किसी एक रिलेशन में काम नहीं करता है, एजुकेशन से लेके रिलीजियस, कल्चरल, सब पर्सपेक्टिव में NGO वर्क्स फॉर द पीपल। तो जो हमारा ये जो फंडिंग्स है, ये जो FCRA का फंडिंग है, वो ये 5 चीज़ों पर फंडिंग्स दे सकता है, दैट इज सोशल, society, education, religion, economics and cultural. FCRA registration is renewed every 5 years. After every 5 years उसका renewal होता है and the NGOs also have to compulsorily open an account। ये जो पिछले साल हुआ था वो इसके लिए हुआ था क्योंकि जो हमारे जितने भी NGOs हैं उनको स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोला गया, एक तो उनमें चेंजेस आया एक्ट में कि आपको स्ट्रिक्टली SBI बैंक में आपको अकाउंट रहना चाहिए जिसमें सारे फॉरेन फंडिज आएंगे, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रह सके कि कोई NGOs जो है पैसों का गलत फ़ायदा नहीं उठा रहा है, बिकॉज SBI इज डायरेक्ट अंडर द RBI, गवर्नमेंट के अंडर है। तो ये जो लास्ट ईयर इसके लिए आया था बिकॉज ऑफ दिस कि उन्होंने बोला था यू हैव टू मेक अ कंपलसरी अकाउंट इन SBI, और सारा FCRA का जो फंडिंग होगा, जितने भी फॉरेन कंपनीज फंडिंग्स देंगे वो डायरेक्ट इसी अकाउंट में आएगा, सो दैट
एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो कि ये पैसे यूज़ कितने हो रहे हैं, कितने पैसे एक्चुअली आए हैं और कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। सो रेन्यूअल के रिलेटेड ये आर्टिकल आया था। अब रेन्यूअल के रिलेटेड आया तो हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि FCRA है क्या, ठीक है। और जैसे मैंने बता दिया, थोड़ा इन डेप्थ उसको और जान लेते हैं। सो FCRA कभी भी न्यूज़ में आया तो उसको हमेशा कनेक्ट करके रखो NGO से, ठीक है। FCRA में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं मेंस में पूछूं, मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा आएगा कि द मिसयूज ऑफ फॉरेन फंड्स एंड द इश्यूज नीड्स टू स्ट्रेटन अप। तो आपको FCRA में क्या इश्यूज है वो बतानी पड़ेगी प्रॉपरली। चलो FCRA के बारे में पढ़ते हैं। रिसेंटली 2020 में इसमें एक मतलब ये एक्ट जो है अमेंडमेंट लाया था इसके अंदर, जिसके अंदर ये बोला था कि जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे फॉरेन कंपनीज़ के तरफ से जो NGOs को, उसका प्रॉपर रिसिप्ट, ठीक है, एक दे हैव टू रेगुलेट अ रिसिप्ट। ऑब्वियसली अगर SBI बैंक के अंदर करेंगे तो उनको प्रॉपर डेटा रहेगा, ठीक है। अब FCRA का हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं या सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं कि क्या स्कोप है। तो ये जो एक्ट लाया गया था ये इसके लिए लाया गया था ताकि फॉरेन कंपनी से या फॉरेन जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है नेशनल इंटरेस्ट को लेके उसके ऊपर ध्यान दे सकें। It has a very wide scope and is applicable to the natural persons, body corporate and all the types of Indian entities, ठीक है। उसके बाद इसके जो ब्रांचेज हैं ये कंपनीज़ के, वो इंडिया के रिलेटेड हैं और ये इसकी फंक्शनिंग जो है बेसिकली होम अफेयर्स के अंडर की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर FCRA की फंक्शनिंग करवाते हैं, ठीक है। नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एक्ट के हिसाब से पढ़ें तो इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, ये एक्ट क्या बोलता है, दे प्रोहिबिट द एक्सेप्टेंस और यूज ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन, ठीक है। इसमें क्या है, जो फंडिंग्स आएंगी NGO को उसमें कौन कौन फंडिंग नहीं दे सकता या किसकी फंडिंग्स वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इलेक्शन के तरफ से जज, जर्नलिस्ट का, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, ये लोग की तरफ जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है इनके रिलेटेड यूज़ नहीं कर सकते हो आप। ऐसा हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, आपने कम कैंपेनिंग के टाइम यूज़ कर लिया NGO के नाम पे, यू कांट डू दैट। किसी भी तरह की इलेक्शंस के रिलेटेड, पब्लिकेशन, जर्नलिस्ट के रिलेटेड आप वो पैसों को यूज़ नहीं कर सकते हो। Second is to regulate the inflow and use of foreign contribution by NGO by prescribing a mechanism to accept, use, report the usage of the same. कितना अमाउंट ऑफ यूज़ किया है आपने, कहाँ यूज़ किया है, किधर किधर गया है, क्या बेनिफिशियल हुआ है, वो सब चीज़ उसमें रखना पड़ेगा। So the FCRA defines the foreign contribution to include currency, articles other than a gift, personal use, securities received from foreign sources, फॉरेन मनी होता है ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये एक्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट NGO जो है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करेगा, प्रॉपर सर्टिफिकेशन बनाएगा कि दे आर वर्किंग अंडर FCRA और ये मनी को एक्सेप्ट करके दे विल वर्क फॉर दी सोसाइटी। तो दिस थिंग इज़ क्लियर। सो इसकी वजह से FCRA इस वे में वर्किंग होती है। पिछले साल भी न्यूज़ में था, तो आई थिंक सो 2-3 साल या फिर अगले साल तक तो इसके रिलेटेड शायद आर्टिकल आ ही जाए कि FCRA की फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है। आई होप सो ये आर्टिकल क्लियर है आपको। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट हैंडलिंग चाइना अ बायलैटरल इशू। अब ये हुआ क्या है, हमने बहुत दिन से सुना कि क्वाड के रिलेटेड चाइना स्पीकिंग की एंटी चाइना है, इसकी वर्किंग हमारे अगेंस्ट हो रही है, जो भी इश्यूज थे। रिसेंटली वन ऑफ द मीटिंग्स में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर सर ने क्या बोला है कि चाइना के साथ रिलेशन हैंडल करना ये नहीं कि सब हम पर डिपेंड करते हैं, एवरी रिलेशन हैज़ अ बायलैटरल रिलेशन। बायलैटरल रिलेशन उनके बोलने का मतलब क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल क्वाड के लोग हैं, अब क्वाड के जितने लोग हैं उनका चाइना के साथ रिलेशन इज़ अ बायलैटरल, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड। जैसे कि चाइना अभी क्वाड में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, US है, ठीक है।
चाइना का रिलेशन इंडिया के साथ कैसा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसा है, जापान के साथ कैसा है, यूएस के साथ कैसा है, इज़ वेरी डिफरेंट. सो देयरफॉर चाइनाज रिलेशन को हैंडल करना इज़ अ बायलैटरल इशू. इट डजंट डिपेंड्स अपॉन एनी ऑफ द ग्रुप्स और एनी 2 to 3 group countries together, but it all depends the relation between that 2 countries. एक साइड चाइना और दूसरी साइड जो भी कंट्रीज हैं. ठीक है. सो आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल में क्या बताया है इन्होंने. सो एक चीज़ उन्होंने क्लियरली बताया है कि ये चीज़ बनाई नहीं जाती, इट इज़ ए नेचुरल एवोल्यूशन. कोई जानबूझ के ये चीज़ करता नहीं है, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ अ नेचुरल एवोल्यूशन जो 2 कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन होते हैं. ठीक है. सो नेगोशिएटिंग चाइनाज राइज इन द वर्ल्ड वॉज लार्जली अ बायलैटरल मैटर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर said on Friday in the उनको एक्चुअली एक मीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ डू यू थिंक कि आप जो चाइना का राइज है सभी पर्सपेक्टिव में उसको कैसे डील कर सकते हो. उस पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि आई वुड से इन मैनी ऑफ द वेज दोज आर द बायलैटरल चॉइसेस दैट हैव टू बी मेकन. वी ईच आर वेरी सब्सटैंशियल रिलेशंस विथ चाइना. तो उनको जो क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू यू थिंक यू विल टैकल इट, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो सबके बायलैटरल रिलेशंस पे डिपेंड करते हैं. And in many of the ways, China being today as such a player and so silent in the international economy, I think it's a natural that these relationships are quite unique. According to Mr. Jaishankar, उन्होंने जो बोला उसमें भी उन्होंने आगे उन्होंने उसमें ये ऐड किया. He named Quad members France and Indonesia an example that would have a unique problem and opportunities around the problems and opportunities related to China. And therefore उन्होंने बोला कि it is a natural evolution. किसी का भी relation जो है वो naturally because of their जो इतने terms में जैसा रहा है उसकी वजह से होता है, ना कि it is all of sudden. The minister said that it was important to normalize the conversation as Quad and that it did not imply a ganging up but a natural evolution. जैसे कि चाइना बोलता है क्वाड कंट्री जो है ये लोग साथ में आकर चाइना के अगेंस्ट बात करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. कोई किसी के साथ नहीं आता, सबका कहीं ना कहीं किसी के रिलेशन के साथ रहता है कि उसका कैसा रिलेशन है. जैसे कि अगर हम लोग अभी बात करें कोई मीटिंग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्रिक्स ले लेते हैं. ठीक है, हमने ब्रिक्स लिया, ब्रिक्स में इंडिया है, चाइना है, सब है. साथ में कैसे हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ब्राज़ील के साथ कैसा रिलेशन है, रशिया के साथ कैसा रिलेशन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो कोई किसी के साथ गैंग अप नहीं करता, बट नेचुरल एवोल्यूशन है जो खुद से इंटरनेशनली ऑर्डर्स के हिसाब से होता है. We are for peaceful resolutions of disputes. We are for democratic values. We are for territorial integrity of the states. So I think it's very important not to be railroad into some kind of negative discourse, which are actually not from our script. It is so somebody else's script, he said, and I don't think we should fall for it. क्लियरली उन्होंने इंडिया की जो वर्किंग है कि इंडिया किस चीज़ पे वर्क करता है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी किसी के बोलने पे हमें नहीं जाना है. सो ये उनका बोलना था कि इंडिया का चाइना का जो रिलेशन है वो सबसे डिपेंड करता है. नाउ विल मूव टू द लास्ट आर्टिकल. द लास्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडियाज वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, या हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग. सो मेकिंग पार्टी अ कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस विल इंश्योर इन पार्टी डेमोक्रेसी मेक्स देम अ ट्रांसपेरेंट डीकम्युनलाइज देम. ठीक है, सो इसमें क्या है, एक मॉडल लिया है जिसको बोलते हैं जर्मनी मॉडल या जर्मन मॉडल. उस मॉडल के हिसाब से बोला है कि इफ दिस मॉडल इज़ बीन यूज, कहीं ना कहीं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मोर एफिशिएंटली वर्क करेगी. सो जर्मन मॉडल देखने से पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन कि क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग. So the political party is an organized group of citizens who hold a very common view on governance and act as a political unit. ठीक है, there is
indispensable link between people and their representative. Political parties have extra legal growths in almost every democratic country. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिया जैसे ब्रिटेन के पास भी ऐसा कोई सच जैसे यहाँ पे इंडिया में कैसे प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज है, ब्रिटेन का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जहाँ पे ऐसा ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. In Britain too, political parties are still unknown to the law. Nonetheless, Sir Jennings in the British Constitution opined that a realistic survey of British Constitution today must begin with the endings with the party and discuss the length in the middle. इसका बोलने का मतलब कैसा है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, उसके रिलेटेड इलेक्शंस होंगी, वर्किंग होगी. बाकी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज को उतना एम्फोसाइज नहीं दिया, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है. ठीक है. सो द जर्मन मॉडल, ये जर्मन मॉडल क्या है, तो जर्मन की जो वर्किंग है वो बेसिकली बेसिक लॉ ऑफ फेडरल रिपब्लिक, बेसिक लॉ ऑफ फेडरल रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वैसे इनका बेसिक लॉ ऑफ फेडरल रिपब्लिक 1949 में बना था. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को. उसमें जैसे कि ये बेसिक लॉ का जो आर्टिकल 21 है, सो द बेसिक लॉ आर्टिकल 21 डील्स विद देयर स्टेटस, राइट्स, ड्यूटीज, फंक्शंस. इसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज के क्या राइट्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं. ठीक है, एक दो इसमें जैसे बताया है कि पॉलिटिकल पार्टीज, फर्स्ट वन, पॉलिटिकल पार्टी शैल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल विल ऑफ पीपल. दूसरा, पार्टीज by reason of their aims of the behavior of their adherents seek to undermine or abolish the free democratic basis or to endanger the existence of फेडरल रिपब्लिक जर्मनी shall be unconstitutional. ऐसी कोई वर्क नहीं करनी जो इनके मॉडल के अगेंस्ट जाए. थर्ड, the Federal Constitutional Court shall rule on the questions of unconstitutionality. Next, detail shall be regulated by federal laws. German model of constitutionalizing the political party is more desirable for India than US and UK models. तो इन्होंने ये बोला है कि इंडिया को भी ये जर्मन मॉडल जैसा एक मॉडल यूज़ करना चाहिए क्योंकि इंडिया को सख्त ज़रूरत है. स्विंग टू द करंट सिनारियो, सबसे बेसिक रीसेंट एग्जांपल ले लेते हैं वेस्ट बंगाल का. अपनी दादागिरी, हमें बाईपोल करवाना है, हमें ये चीज़ करवाना है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहे बट खुद के लिए सोच रहे हैं. सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट येस, इंडिया नीड्स सच अ मॉडल. इंडिया नीड्स अ चेंज इन दियर कॉन्स्टिट्यूशन लिटिल बिट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल पार्टी. Then Section 29A of the Representative of People Act 1951 is the only statutory provision dealing with the political parties in India. हमारा जो Representative People's Act है RPI 1, उसका जो सेक्शन 29 है, इकलौता अकॉर्डिंग टू देम वही इकलौता आर्टिकल है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का जो फंक्शनिंग इंडिया को रिलेटेड उसकी रिलेटेड बात करता है. It orders that political parties shall bear the true faith and allegiance to the Constitution of India and as by law establish all the principles of secularism, socialism, democracy and uphold the sovereignty. So पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट क्या बताता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये लोग को प्रॉपर सारे प्रिंसिपल्स पे वर्क करने चाहिए एंड उनका मेन एम होना चाहिए इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. So the political parties in developed nation maintain a high level of internal democracy. Like in US, Conservative Party has a National Conservation Convention as its top body. It has a central council and an executive council. ठीक है, सेंट्रल काउंसिल पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं और जो चेयरमैन और वाइस पर्सन हैं उनकी एनुअल मीटिंग्स होती है. वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक ऐसी बॉडी चाहिए. ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इट इज़ सेड कि इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. और लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं या रिजिड भी बोल सकते हैं, प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. इट इवन इलाबरेट्स द डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटी. हमने देखा था उसी दिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ते टाइम फंडामेंटल राइट, DPSP हमारा, देन पार्ट, सभी चीज़ में एक माइन्यूट चीज़ों को क्लियरली डिस्क्राइब किया है.
फिर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) बट द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट इट, क्योंकि 19 में हमें क्या बोला, इट इज़ अ राइट कि हम अपनी ऐसे जो एसोसिएशन है जो ये बना सके, बट पॉलिटिकल पार्टी एज सच उसमें प्रॉपरली क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया है. सो ऑलमोस्ट ऑल दी पार्टीज, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया मजली इत्तेहादुल मुस्लिम्स, then the Indian Union Muslims League, etc. are the families of fiefdoms. The Congress a highly command is the only गांधी फैमिली. पूरा हायरार्की सिस्टम ही है ऑब्वियसली गांधी फैमिली अगर आप देखेंगे तो. So political parties are actually the agents of democracy and the safety values in the political system, and hence it is a high time कि हमारे political parties को थोड़े से changes लाने चाहिए, democracy में थोड़ा changes आना चाहिए, so that they can be a proper transparency, ठीक है, between the people and their parties, ठीक है, and there should be decommunalizing them. जो community system बनाया जा रहा है, communalization हो रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. सो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी उसके रिलेटेड चेंज होना चाहिए. अब आर्टिकल अगर कभी न्यूज़ में आया जर्मन मॉडल किस चीज़ के रिलेटेड है तो वो याद रहना चाहिए. उसका कौन सा सेक्शन जो मैंने आपको बताया जो पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड बात करता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.